بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں غربت کا دور دورہ تھا، جس عمر میں لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ میں کشکول تھما دیا گیا۔ ہم گلی گلی بھیک مانگنے پر مجبور تھے۔ کچھ لوگ ہمیں دھتکارتے، کچھ ترس کھا کر چند روپے دیتے تھے۔ انہی روپوں پر ہماری صبح سے شام تک کی روزی روٹی ہوتی تھی۔ جبکہ اب میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے لوگوں کی کاٹتار نظریں بھی دیکھنے کو ملتی۔ لوگ بھیک سے زیادہ مجھے گندی نظروں سے نوازتے تھے، جس کا مجھے ادراک تو تھا، مگر میں اس بارے میں بہت بے بس تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بھلا اپنا نصیب بدلنا بھی کیا کسی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اس وقت میری عمر بمشکل 13 سال ہوگی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ والد کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ بڑا بھائی اپنی ہی بستی کی ایک بھکارن سے شادی کے بعد ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ امی اور میری باقی بہنیں اپنی زندگی کی گاڑی بمشکل گھسیٹ رہے تھے۔ بہرحال ہماری بستی کے لوگ بہت محبت کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے، مگر پھر بھی روزی روٹی تو سب نے اپنی ہی کرنا ہوتی ہے۔ اماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، جبکہ ساری زندگی انہوں نے نشہ کرتے ہوئے گزاری تھی۔ سنا ہے کہ نشہ کرنے والوں کو بھیک زیادہ ملتی ہے۔ یہ نشہ کرنے کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ ایک دن انہوں نے حکیم صاحب سے گولیاں لیں، جو کسی نشے سے بھی زیادہ طاقتور تھیں۔ یہ گولیاں کھا کر اماں دن رات سوئی رہتی اور ہم گلی گلی در بدر ہوتے بھیک مانگتے۔ ہماری بستی میں چچا بشیر رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں پورا دن سوئی رہتی ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے گھر گھرستی سکھا دے۔ میں اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا اور کھانا خود ہی کر لیتی تھی۔ امی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ گھر کے کام کرتی۔ میں گاؤں کے کھوکے سے اب اشیاء خوردونوش لے آتی تھی۔ جب بھی جاتی، محلے کے لڑکے مجھ پر آوازیں کستے، کوئی بھکارن کہتا تو کوئی پیسوں کے بدلے میں میری عزت مانگتا۔ میں کس کس کو منع کرتی؟ ان میں سے ایک لڑکا ایسا تھا جو ان سب کو منع کرتا۔ اسی وجہ سے میں نے دانیال پر بھروسہ کر لیا اور اس سے بات چیت کرنے لگی۔ دانیال بھی ایک اچھے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کا گھر ہماری بستی سے تھوڑی دور واقع تھا۔ یہ شریفوں کی آبادی میں رہتا تھا اور ان لوگوں سے کم ہی میل جول رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا روب دبدبا تھا۔ لڑکوں نے اس کی بات مانی تو میں بھی متاثر ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ہی میں دانیال سے مانوس ہو گئی۔ اب گھر کی چیزیں دانیال سے کہہ کر منگوا لیتی اور کبھی کبھی وہ گاڑی میں راشن بھر کر ہمارے گھر لا کر ڈلوا دیتا۔ میری اس سے اب پکی دوستی ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر کوئی 12-13 سال تھی، جب وہ 20-22 سال کا اچھا خاصا کڑیل نوجوان تھا۔ اب اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں ڈھکا چھپا نہیں رہ سکا۔ محلے داروں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ لوگ جو ہمارے خیر خواہ نہیں تھے، ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارے گھر میں کسی اور غرض سے آتا ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھیکارنیں اب اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ گو کہ ہم غریب تھے مگر عزت دار ضرور تھے۔ جب یہ بات میرے بھائی کو پتہ چلی تو وہ غصہ ہو گیا اور سیدھا ہمارے گھر آ گیا۔ میری قسمت یہ کہ اس وقت میں دروازے پر کھڑی دانیال سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے مجھے کیا دینے آیا تھا۔ جب بھائی نے دانیال کو دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ دانیال کو تو کچھ نہ کہا کیونکہ وہ امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جبکہ مجھے بہت مارا اور مجھے آگ لگانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت چچا بشیر آ گئے۔ چچا بشیر ہماری ہی بستی میں رہتے تھے اور مجھ پر مہربان سائے کی طرح تھے۔ چچا نے میرے بھائی کو ملامت کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنی بیوی کے غلام ہو گئے ہو، اور پیچھے مڑ کر اپنی بہن کا حال بھی نہیں پوچھا۔ تمہاری بہن کو بازار میں لڑکے چھیڑتے ہیں، انہی سے بچ کر اس نے دانیال کا سہارا لیا ہے، اس سے سودا سلف منگواتی ہے۔ اگر تم اس کی شادی کر دو تو یہ کم از کم اپنے گھر کی ہو کر رہے گی، اور اس طرح روز اس کے بارے میں محلے والے باتیں بھی نہیں کریں گے۔ چچا کے کہنے پر میرے بھائی نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی، مگر اب ڈھنگ کا رشتہ کہاں سے ملتا؟ ایک تو کم عمر تھی اور پھر دوسرے مجھے بھیک مانگنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارے ہاں جو عورت اس پیشے سے انکار کر دے، اس سے شادی تو دور کی بات، کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں ایک حکیم صاحب کا آنا جانا تھا۔ یہ حکیم صاحب اماں کا علاج کیا کرتے تھے، اکثر دوائیں مفت ہی دے دیا کرتے تھے۔ خیر ان کی کرامات کا ڈھونگ بھی اس وقت کھل گیا تھا جب انہوں نے میرے بھائی سے میرا رشتہ طلب کیا۔
ये शादी करने पर भाई राजी न होता, मगर शायद हकीम साहब ने उसे तगड़ी रकम थमा दी थी। जब भी भाई ने अपने होंठ सी लिए और मेरी शादी उमर रसीदा हकीम साहब से करने पर तैयार हो गए। ये बात हमारी बस्ती में आम थी। अक्सर लड़कियों को बूढ़ों से ब्याह दिया जाता था अगर दौलत का ज़्यादा लालच होता। जब मुझे ये पता चला कि मेरी शादी हकीम साहब से की जा रही है तो मैंने बहुत वावेला मचाया। भाभी ने समझाया कि तुम्हें नए कपड़े और जूते मिलेंगे, शादी होगी तो ऐश में रहोगी, मगर ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी कि मर जाऊंगी मगर ये शादी नहीं करूंगी। जब किसी ने मेरी न सुनी तो मैं मारे डर के छत पर चढ़ गई और चचा बशीर के घर छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो शुक्र था कि चारपाई पर गिरी, चोट ज़्यादा नहीं आई थी। मेरे भाइयों को जब मेरी इस हरकत का पता चला तो ये मुझे मार मार कर मेरे घर वापस ले आए और एक कोठरी में बंद कर दिया। इस सब पर मैंने बहुत शोर मचाया, मगर मेरे भाई ने मेरी एक न सुनी और मेरी चीखों को मेरे दिल में ही दबा दिया। हकीम की रकम ने मेरे भाई को इतना संगदिल बना दिया था कि मेरे सर और पाँव से खून रिस रहा था। माँ ये हालत देखकर परेशान हो गई। पड़ोसी भी फिक्रमंद थे, मगर मेरे भाई को मुझ पर रहम नहीं आया। अगले दिन मेरी शादी ज़बरदस्ती उस बुढ़े से कर दी गई। मेरी माँ कमज़ोर आवाज़ में मेरी शादी करने पर मेरे भाई को कोसती रही, मगर किसी ने भाई की आवाज़ नहीं सुनी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसका दर्द अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी कागज़ के औराक पर किसी और के नाम मुंतकिल कर दी गई। मैं उस बुढ़े को देखकर लाल पीली हो रही थी, जिसकी हवस परवा आंखें मुझे घूर रही थी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि बेटी तुम्हें तो कोई शहजादा लेने आएगा, जो सफ़ेद घोड़ी पर सवार होगा वो तुम्हारा हम सफ़र होगा। ये मेरा क्या हम सफ़र हुआ जिसके बाल सफ़ेद थे, अपने पीले दांतों, लाल आँखों और ढोल जैसी पेट के साथ वो मुझे किसी देव से कम नहीं लग रहा था। मेरी खुशियों और मेरे हक पर डाका डाला जा रहा था। मेरी शादी ज़बरदस्ती उस बुढ़े से कर दी गई। जानवरों की तरह बांध कर गाड़ी में डाला गया। मेरी सांसें जैसे थम चुकी थी। मैं एक लाश की तरह उस 60 साल के बुढ़े के साथ आ गई, जिसे शर्म भी नहीं आई कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। कहाँ एक 12 साल की बच्ची को दुल्हन बनाकर ले जा रहा है। मेरे भाई ने 3 बीघे ज़मीन के वास्ते मेरा सौदा कर दिया। हर रिश्ते ने मेरा तमाशा देखा, किसी ने मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। देहाती तो यही कहते हैं कि ऐसी बेहया लड़की को कत्ल कर देना चाहिए। मैंने इस शादी पर मुखालिफत की थी। मेरे लिए ये बात भी बड़ी थी कि ज़िंदगी की अमान मिल गई थी। शादी की रात हर लड़की के सपनों की रात होती है, मगर वो दिन मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन था, क्योंकि मेरे अरमानों पर औस पड़ चुकी थी। बिलाखिर जब मुझे कमरे में छोड़कर सब लोग बाहर चले गए तो मैं उठकर वहाँ से बाहर निकल आई। एक बड़ी बूढ़ी अभी कमरे के पास ही खड़ी थी, शायद किसी को कुछ समझा रही थी। मैं उनके पाँव में पड़ गई और बोली, खुदा के लिए मुझे इस शख्स से बचा लें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उस औरत ने मेरी तरफ कड़ी निगाहों से देखा और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये मेरी होने वाली सास थी, शायद मेरी कैफियत को समझ गई थी। इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर प्यार किया और बोली, बेटी परेशानी की कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे पास सो जाओ। जब तुम इस घर से मानूस हो जाओगी तो ज़िंदगी के बाकी मामलात भी देख लेना। ये दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जब अगली रात आई तो मेरा देवनुमा शौहर मुझे लेने आ गया। उसकी माँ ने भी मुझे समझाया कि बेटी तुम कब तक मेरे पास रहोगी, आखिर तुम्हें अपने शौहर को कबूल करना पड़ेगा। ये सब तो मैं मर कर भी नहीं सोच सकती थी। बिलाखिर मौका पाकर मैं उस जहन्नुम से निकल आई। अब घर से निकली थी तो मैं यूं भाग रही थी जैसे मेरे पीछे खूंखार शिकारी लगे हों। सच कहूँ तो मेरा शौहर किसी शिकारी से कम नहीं था। उसकी आंखें शिकारियों वाली थी, मुझे उससे खौफ आता था। अब घर से निकली तो थी, मगर ये रात का वक्त था, मैं कहाँ जाती। सरपट भागते हुए जब मंजिल का कोई निशान नहीं मिला तो एक जगह रुक गई। अभी मैंने अपना सांस भी बहाल नहीं किया था कि दूर से किसी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पर सिरक रहा है। शायद ये सब घबराहट की वजह से हो रहा था। ये आवाज़ सुनते ही मैंने दोबारा भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस वक्त रुकी जब मुझे एक गाड़ी की टक्कर लगी। उसके बाद कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक बड़े से जहाज़ी साइज के बेड पर लेटी हुई थी। नर्म रेशमी बिस्तर बिछे थे, जबकि मेरे कपड़े भी तब्दील हो चुके थे।
ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई जहन्नुम से निकलकर किसी जन्नत में आ गई हूँ। यहाँ का माहौल ही अजीब था। सुर्ख रेशमी पर्दे जा बजा लटके हुए थे, जबकि मेरा लिबास भी बहुत उम्दा था। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैं नहीं जानती थी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि एक ख्वाजा सरानुमा आदमी मेरे कमरे में आया। ताली बजाकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं किसी रोबोट की तरह चलती हुई उसके पीछे पीछे आ गई। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, जबकि बाकी सोफे और बेड वगैरह तरतीब से बिछाए गए थे। औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, बेटा तुम कहाँ से आ रही थी? तुम्हें यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे हाथों में महफूज हो, जहाँ कहोगी पहुँचा देंगे। बड़ी बी की बात पर मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी और बोली कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। आप मुझसे जो चाहे काम करवा लें, मगर मैं अपने घर जाने से बहुत डरती हूँ। इन्होंने मेरी बात को समझ लिया। मैं बड़ी बी के घर रहने लगी और यहाँ आकर मुझे सुकून मिला था। बड़ी बी ने मुझे अपने घर के कामों के लिए रख लिया। बड़ी बी के अलावा घर में एक औरत और एक मर्द रहते थे। शायद ये इनकी बहू और बेटा थे। मुझे इन लोगों से मिलकर जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। मुझे बड़ी बी की उतरन भी पहनने को मिल जाती। अलबत्ता छोटी बेगम साहिबा के मलबूसात ऐसे होते थे जिन्हें पहनते हुए मुझे शर्म आती थी। फिर कुछ दिन गुजरे कि मैं इस घर के फर्द की हैसियत इख्तियार कर गई। मैं अच्छे अच्छे खाने बनाती। रहने के लिए मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिल चुका था। एक दिन मैं अपने क्वार्टर में सफाई के बाद अपना दुपट्टा सर से बांधे बैठी थी कि उसी वक्त किसी की आहट का एहसास हुआ। मैंने जो देखा तो साहब मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। मुझे उनका यहाँ आना अजीब लगा। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और हिचकिचाते हुए पूछा, साहब जी आप, कोई काम था तो मुझे कह दिया होता। आपने यहाँ आने का तकल्लुफ़ क्यों किया? मेरी बात पर उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, मुझे साहब जी मत कहो, मैं तुमसे एक ख़ास बात करने आया हूँ। मुझे उनका अंदाज कुछ अजीब सा लगा। बहरहाल मैं फर्श पर बैठ गई। वो सामने मौजूद पीढ़ी पर बैठ गए। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। फिर उन्होंने जो कुछ कहा वो मेरे दिल का चैन और करार छीन गया। तुम मेरी बात सुनोगी तो फिर तुम्हें मेरे मुतालबे पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बड़े साहब ने अपनी तमहीद शुरू की। जानती हो, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था। उस वक्त मेरी उम्र कोई 12 साल होगी जब अब्बा हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर दूसरे जहां चले गए थे। ये औरत जिसे तुम देख रही हो, ये मेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि मेरी फुप्पी है। मगर इन्होंने मुझे एक माँ की तरह पाला था। इन्होंने मुझे ज़िंदगी की हर आसाइश दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी आला तरबियत की, यहाँ तक कि मैंने फुप्पो के किए गए तमाम एहसानात का बदला चुका दिया। मैंने इतना बड़ा घर बनाया और इस घर को शानदार कोठी में बदल दिया। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब इस दुनिया में मैं अकेला रह गया था। बहरहाल मैंने मेहनत करके अपनी तकदीर को बदल दिया था। लेकिन जब मैं 25 साल का हुआ तो फुप्पो ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि वो मेरी शादी सानिया से करना चाहती हैं। सानिया उनकी इकलौती बेटी थी, मगर निहायत बिगड़ी हुई औलाद थी। फुप्पो के एहसानात मुझ पर इतने ज़्यादा थे कि मैं सानिया की शादी के लिए इनकार नहीं कर सका। यूँ मेरी सानिया से शादी हो गई। मैंने दिल पर पत्थर रखकर सानिया को कबूल तो कर लिया, मगर शादी की पहली रात ही उसने मुझे बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती थी जो उसे छोड़कर जा चुका है। वो सारी ज़िंदगी शायद उसका गम मनाती रहे, लिहाजा मैं उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ बनाने की कोशिश न करूं। सानिया पहले ही मेरे दिल से उतर चुकी थी। उसकी इस बात ने मेरे दिल में सानिया के खिलाफ नफरत भर दी। मैं कुछ न बोला, मैंने सब्र कर लिया, मगर फिर सानिया की हरकत दिन ब दिन बदलती गई। उसने रात को लेट आना शुरू कर दिया। नमाज रोज़े का उसे शुरू से कोई इल्म ही नहीं। वो नमाज रोज़े को दकियानूसी ख्यालात समझती है, जबकि मुझे हमेशा से पर्दादार और हयादार औरतें पसंद हैं। जब से मैंने तुम्हें देखा है सानिया, मुझे और भी बुरी लगने लगी है। मैं तुम्हारी शर्म हया का कायल हो गया हूँ। यकीन जानो, मैंने हसीन चेहरे बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारी नमाज पढ़ने की आदत, तुम्हारी झुकी झुकी नज़रें, मैं तुम्हारी तरफ खिंचता ही चला आ रहा हूँ। शादी करने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगर तुम मुझे कबूल कर लो तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे दीन इस्लाम से मोहब्बत की वजह से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी में भी बरकत आ जाए। खुदा के लिए मेरी बात पर इनकार मत करना। साहब जी अपनी बात बताकर खामोश हुए तो मुझे कुछ सच और कुछ झूठ बोलना पड़ा। साहब जी, आप ये कैसी बातें करते हैं?
मैं किसी की अमानत हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और एक शादी पर दूसरी शादी नहीं होती। किसी मजबूरी की वजह से आर्जी तौर पर यहाँ रह रही हूँ, मगर आपसे शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने बिना सोचे समझे ही एक ही सांस में साहब जी को सारी बात कह तो दी। मैं अपने मोहसिनों का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि मेरे पास मेरी ज़िंदगी बदलने का मौका शानदार था, मगर मैं अपने ही मोहसिनों के घर में नकब क्यों लगाती। जिन लोगों ने मुझे पनाह दी थी उनको क्यों डसती। मगर सच कहूँ, माजिद हुसैन मुझे दिल से अच्छे लगते थे। उनके इजहार मोहब्बत के बाद वो तो खामोश हो गए, मगर मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई। उनका वो इजहार मोहब्बत और मुझे सराहना आज भी याद आता है तो बेकरार हो जाती हूँ। हालांकि इस क्वार्टर में पड़े पड़े मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। जवानी ढल गई है, अब शायद वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखते हों, मगर मैं आज भी उनके उन अल्फाज के सहर में गिरफ्तार हूँ जो उस रात उन्होंने इजहार मोहब्बत के तौर पर कहे थे।